રહ્યા છો સાબરવાઝ ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. શેઠ કેએલ હોસ્પિટલ લક્ષ્મીપુરા ઇમેજિંગ સેન્ટર અને પ્રવેશદ્વારનું લોકાર્પણ યોજાયું. તેરા પંથના 11મા આચાર્ય પ્રવર ગુરુદેવ મહાસમણજી મહારાજ લાડનું પદવિહાર કરી સુરત, અમદાવાદ અને કચ્છ મુકામે ચાતુર્માસ પછી 3 વર્ષ બાદ પરત રાજસ્થાન લાડનું જતા ભગવાન શામળિયાના મંદિર એવા શામળાજી મુકામે તેરાપંથ ખેડ બ્રહ્માના પ્રમુખ શ્રી શંકરલાલ શાહ દ્વારા કરવામાં આવેલ નિષ્ઠાપૂર્વકના પ્રયત્નોથી આચાર્ય ભગવતના શિષ્ય સમુદાય તથા દાનવીર દાતાઓ તરફથી મળેલ મોટી સખાવતમાંથી શેઠ કેએલ હોસ્પિટલ લક્ષ્મીપુરાને આપેલ અનુદાનથી આચાર્ય મહાસમણ ઇમેજિંગ સેન્ટર અને પ્રવેશદ્વારનું વિધિવત લોકાર્પણ શામળાજી મુકામે આચાર્ય મહાસમણજી મહારાજ દ્વારા કરવામાં આવેલ. સમગ્ર હોસ્પિટલ પરિવાર અને આજુબાજુના હરિભક્તો એવું વિચારેલ કે પદવિહાર કરનાર આચાર્ય પ્રવરને તકલીફ ન થાય તે માટે શેઠ કેએલ હોસ્પિટલ લક્ષ્મીપુરા પરિવાર અને આજુબાજુના લગભગ 200 જેટલા હરિભક્તો શામળાજી મુકામે મહારાજશ્રીના દર્શન, લાભ અને આશીર્વાદ માટે ઉપસ્થિત થયા હતા. જે પ્રસંગે ધાર્મિક સભામાં પૂજ્ય શ્રીએ ઇમેજિંગ સેન્ટર અને પ્રવેશદ્વારનું વિધિવત લોકાર્પણ કરી અને આશીર્વાદ પ્રદાન કર્યા હતા. આ પ્રસંગે હોસ્પિટલના પ્રમુખ શ્રી વસંતભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી જીતાભાઈ પટેલ તેમજ સમગ્ર કારોબારી સભ્યો, કિસાન સંઘના રાષ્ટ્રીય મંત્રી શ્રી બીકે પટેલ, 4 તાલુકા મંત્રી શ્રી દિનેશભાઈ પટેલ, જ્યોતિ હાઈસ્કૂલ ખેડ બ્રહ્માના પૂર્વ પ્રિન્સિપાલ સુરેશભાઈ પટેલ, રામજીભાઈ અને ક્ષેત્રના સમગ્ર પ્રમુખશ્રી તેમજ કારોબારી સભ્યોને લક્ષ્મીપુરા, ગલોડિયા તથા આજુબાજુના કંપાઓથી મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો તેમજ ઉત્સાહી કાર્યકર્તાઓ, ભાઈઓ તથા બહેનો જોડાયા હતા. આ પ્રસંગે વસાઈના ભાગવત કથાકાર શ્રી શ્યામસુંદરજી મહારાજ, લક્ષ્મીપુરા નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરના શ્રી સોમપુરીજી મહારાજ તથા ઓદેશાનંદજી મહારાજની ઉપસ્થિતિ તથા આશીર્વાદ મળ્યા હતા. હોસ્પિટલના પ્રમુખ શ્રી વસંતભાઈ પટેલ તથા ખેડબ્રહ્મા તેરાપંથના મંત્રી શ્રી શંકરલાલ સાહેબ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કર્યું હતું. પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન મહાસમણજી મહારાજે જણાવેલ કે ભવિષ્યમાં જે તે ભૂમિ ઉપર પદવિહાર કરી અને હોસ્પિટલના પ્રાંગણમાં પધારવા માટે અનુમતિ આપી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સુપેરે આયોજન 4 તાલુકા મંત્રી શ્રી દિનેશભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમના અંતે સૌ ભોજન પ્રસાદ ગ્રહણ કરી અને મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ મેળવી અને કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો હતો. રિપોર્ટર જીતેન્દ્રભાઈ જોશી, ખેડબ્રહ્મા. बाजार था तो सामने दुकानें थी, अनाज की और की दुकानें थी. तो एक दिन वह साधु भोजन करने के बाद अपने उपाश्रय के बाद थोड़ा सा जो बरामदा सा था वह घूम रहा था. उसी समय उपाश्रय के ठीक सामने जो दुकान थी वो अनाज की दुकान थी, एक सेठ की अनाज की. वो सेठ भी दुकान में बैठा था. वो साधु वो घूम रहा था, थोड़ा देख रहा था. तो सेठ वो गद्दी पर बैठा था. इतने में उधर से एक बकरा दौड़ता दौड़ता आया. वो आके दुकान में घुस गया. वो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा मोटा बकरा था. दुकान में आ गया. सेठ ने सोचा रहा बकरा की खराब कर देगा, गंदगी कर देगा. तो अपने 2 नौकर थे दुकान में, उनसे कहा इसको निकालो, बाहर निकालो. तो दोनों नौकर उठे, इसको निकाले. लाठी हाथ में ली, निकालने की चेष्टा की. बकरा जो तेज हो गया आपके पास आया. संत ने कहा कानों में आंखों में विवाद हो गया. हाँ महाराज, विवाद हो गया था. कैसे? मैं तो बहुत दूर रहने वाला हूं यहाँ से, पर आपके बारे में मैंने लोगों से सुना. आप तपस्वी हैं, साधु हैं, घर बार छोड़ दिया है, पद यात्री हैं, पैसा नहीं रखते, आदि आदि बातें, आपकी यशो गाथाएं मेरे कानों ने सुनी तो मेरे कान तृप्त हो गए. तो ऐसे संत लोग हैं आज के युग में भी कि जो पैसा नहीं लेते, परिवार छोड़ दिया, घर नहीं, और बचपन में ही संन्यास लिए. ऐसे संत पुरुष हैं, मोह माया से काफी ऊपर उठे हुए हैं, कांता कांचन से विरक्त हैं. तो मेरे कानों ने ये बातें सुनी, कानों को बहुत तृप्ति हो गई. तब आंखों ने मुझे कहा कि भैया, यानी हमारे भाई कानों को तो लाभ मिल गया, बहुत संतोष मिल गया, पर हमें तो लाभ तब मिलेगा साक्षात दिखाओ, दर्शन कराओ, तब हमें तृप्ति मिलेगी. कानों को तो तृप्ति मिल गई, पर हम आंखों को तृप्ति कहाँ मिली? जब तक दर्शन नहीं होंगे साधु जी के, तब तक हमें तृप्ति.
पत्थर को तराश दे, थारी सूरत में भिक्षुरो वास है, थारी सूरत में तुलसी रो वास है। गुरु अनुकंपा मां पर बरसी। पल्लवी पुष्पित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप जैसे महान संतों का, आप जैसे महान आचार्यों का यहाँ पधारना हुआ है। साथ ही यहाँ लक्ष्मीपुरा के करीब 200 लगभग भाई बहन उपस्थित हैं और हमारा इन लोगों का एक लक्ष्य था कि गुरुदेव लक्ष्मीपुरा पधारे, परंतु गुरुदेव ने भी सारी बात बता दी, मुनिश्री ने भी सारी बात बता दी। समय के अभाव से या नियति योग से नहीं आना हुआ, पर आपसे नम्र अनुरोध है था कि गुरुदेव लक्ष्मीपुरा पधारे, परंतु गुरुदेव ने भी सारी बात बता दी, मुनिश्री ने भी सारी बात बता दी। समय के अभाव से या नियति योग से नहीं आना हुआ, पर आपसे नम्र अनुरोध है कि जब भी गुजरात में पधारना हो तब लक्ष्मीपुरा का स्पर्श अवश्य हो, ऐसा हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। इमेजिंग सेंटर 10 साल पहले, 8-10 साल पहले लक्ष्मीपुरा हॉस्पिटल में तेरापंथ परिवारों की ओर से महाप्रज्ञ महाश्रमण मेडिसिन विभाग प्रारंभ हुआ। उसके बाद में जब गुरुदेव 2023 में खेड़ ब्रह्मा पधारे, तब ये चिंतन बना कि यहाँ एक इमेजिंग सेंटर यानी आज के युग में अच्छा उपचार मिल सके गरीब लोगों को भी, उस दृष्टि से एक इमेजिंग सेंटर का चिंतन आया और आज गुरुदेव के आशीर्वचन से इस इमेजिंग सेंटर का हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। साथ में ही उत्तर गुजरात की मंगल भावना का कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। गुरुदेव आपने गुजरात को जो दिया है और उत्तर गुजरात को दिया है, उसके लिए तो हम जितनी प्रशंसा करें, जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें कम है। कहा भी गया है कि दाता देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आपने हम गुजरात वासियों को छप्पर फाड़ के जो कुछ दिया है वो भी अभी तक हमारे लिए कम है, भविष्य में हमें और अधिक मिले ऐसी आशा है। तो हम आपके प्रति ये मंगल कामना करते हैं कि आपकी आगामी यात्रा सुखद हो। नहीं था हमारे क्षेत्र में, आप श्री ने अहितिक कृपा करके हमें उदयपुर के रास्ते में कहीं भी योग्य स्थान पर समय देने का फरमाया था। आज हम सभी हमारे भावना अनुसार केएल हॉस्पिटल से पूज्य श्री के नाम, केएल हॉस्पिटल में पूज्य श्री के नाम से इमेजिंग सेंटर का बनाने जा रहे हैं। प्रायः बन चुका है ऐसे तो, उसका लोकार्पण पूज्य प्रवर के मंगल आशीर्वाद से होगा। इस दृष्टि से यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ ये विस्तार में, हमारे विस्तार में पहले आरोग्य और शिक्षा की सुविधा बहुत कम थी, आज से 40 साल पहले। तब लाल भाई ग्रुप के सेठ श्री अरविंद भाई लाल भाई हमारे क्षेत्र में आए और यहाँ उन्होंने उस समय पहले शिक्षा क्षेत्र में उनके पिताश्री सेठ श्री नरोत्तम लाल भाई के नाम से स्कूल चालू किया और बाद में उसने देखा कि आरोग्य की भी सुविधाएं बहुत कम है। तब उनके ही परिवार से सेठ श्री कस्तूरभाई लाल भाई के नाम से आरोग्य धाम कार्यरत किया, जो पिछले 40 सालों से कार्यरत है। यहाँ 4 डॉक्टर, एमएस सर्जन, एमएस गायनेक, एमबीबीएस और एमडी फिजिशियन पूर्ण समय के लिए उपलब्ध है। और जो ईएनटी, आई स्पेशलिस्ट, मनोरोग चिकित्सक और सोनोग्राफी और डेंटल, वो सब विजिटिंग डॉक्टर उपलब्ध है। और यहाँ इस हॉस्पिटल में पिछले कई वर्षों से तेरापंथ समाज के सहयोग से आचार्य श्री महाप्रज्ञ महाश्रमण मेडिसिन विभाग भी कार्यरत है। આવા ન્યૂઝ જોવા માટે સાબર આવાજ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને લાઇક કરો, જેથી હવે પછીના દરેક સમાચાર સબસ્ક્રાઇબ કરેલા હશે તેઓને નવા સમાચારની માહિતી મળી જશે।